Yes, now we can start. So concepts of revenue. So revenue means the total sale receipts of a firm or of a seller. यहाँ पर firm or seller one and the same thing. Those who sell the commodity. So total sale receipts. So sale receipts in the modern time they are collected in terms of money only. पैसों में ही collect करते हैं. तो same term revenue is also called total revenue. उसी को ही कह देते हैं. Whatever is received by selling a given level of output to customers, to consumers या buyers, whatever money is received by the seller या firm, that receipt is called total revenue या और simple words में कोई आम लोग उसको simply revenue भी बोल देते हैं. Then three concepts are there. One is total revenue, one is average revenue and one is marginal revenue. Total मतलब total sale receipts and formula क्या होता है इसका? Price per unit multiplied by quantity sold. Q का मतलब units of output sold या quantity sold, price into Q. Then second term is average revenue. Average revenue means per unit revenue after selling a single item या single unit of the commodity या per unit revenue of a product. On an average कितनी revenue मिलती है? तो average revenue is nothing else but the price of the commodity, because when we write AR is equal to PR by Q. तो TR का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी विल गेट कैंसल्ड, लेफ्ट विल बी प्राइस. तो AR का ही सेकंड नेम है प्राइस. चाहे प्राइस कह दें, प्राइस आम बोलचाल में कस्टमर, हम जो आम लोग हैं जब खरीदने जाते हैं तो वी कॉल इट प्राइस. बट जो बेचने वाला है वो प्राइस भी कह सकता है, वो एवरेज रेवेन्यू भी कह सकता है, उसकी मर्जी है. देन थर्ड टर्म इज marginal revenue, which is the change in total revenue या addition to total revenue when one more unit of output is sold. ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के जो बचता है that is called total marginal revenue. और फॉर्मूला क्या होता है? TRN minus TRN minus 1 या एक और फॉर्मूला change in total revenue divided by change in output sold, delta TR divided by delta. जैसा आपको इजी लगे, जो समझ में आए, यू कैन अप्लाई. दोनों का मीनिंग एक ही आ जाना है, आंसर भी सेम आ जाना है. देन उसके बाद हमने जो जहाँ पर थ्योरी पार्ट है, दैट इम्पोर्टेंट पार्ट इज देयर, दैट three types of market forms are there. One is perfect competition, one is monopoly, one is monopolistic competition, and then we have to revise, we have to study the relation among all these revenue curves under these market forms. So I am going to start with perfect competition. Firstly, so perfect competition में टेबल्स नहीं मैं बना रही हूँ, सिंपली डायरेक्टली कमिंग टू द डायग्राम. तो इस केस में दिस इज इक्वल टू AR and M. मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब दैट फॉर्म जिसमें कमोडिटी इज सोल्ड एट ए होमोजीनियस प्राइस. एक चीज का प्राइस एक यूनिट का 10 रुपीज है तो सेकंड का भी 10 ही होगा, थर्ड का भी 10 होगा, सो ऑन. सभी यूनिट्स का सेम प्राइस है. तो सिंस सेम प्राइस इज देयर, तो TR क्या होगा? TR विल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट. एक चीज बेची 10 रुपीज की, दो चीजें बेची 20 रुपीज की, तीन बेची 30 की. अगर इस तरह से हो, ऐसी मार्केट हो, तो TR विल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन, इंक्रीजिंग, अपवर्ड मूविंग. अगर आ जाए ऐसे दो तीन पॉइंट बताओ तो इसी तरह से पॉइंट्स आर टू बी मेड, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस AR एंड MR विल कोइंसाइड विद ईच अदर. सेम ही आएगा कॉलम हमारा, और दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. AR एंड MR विल merge with each other. merge मतलब दोनों इक्वल हो जाए. On the other side, अगर है monopoly market form, तो उसमें होता है सिंगल सेलर and he can exploit the situation. प्राइस ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, बट when he charges more price तो ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं उसके पास में. then he feels कि if he reduces the price, तो then few more customers come. तो उस चक्कर में वो थोड़ा थोड़ा प्राइस कम करता जाता है. तो accordingly, मतलब if he wants to sell more, then he has to lower the price. अगर वो अकड़ रखता है नहीं मैंने प्राइस घटाना ही नहीं है, कम नहीं करना है, तो लोग नहीं आएंगे उसके पास. ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या बनता है? ये दिस इज द शेप ऑफ PR एंड दिस इज AR एंड दिस बिकम्स. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR अंडर मोनोपोली या अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो इम्परफेक्ट का मतलब आपने लेना है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मोनोपोली का ही कह देते हैं. अब इस केस में क्या है, पहले तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए. इफ ए सेलर वांट्स टू सेल मोर, ज्यादा बेचना चाहते हैं, देन ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस. AR कम हो गई है,
10, 9, 8 उसको घटाना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस, ठीक है। इस केस में ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि बताइए इन विच मार्केट फॉर्म ए प्रोड्यूसर डज नॉट हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, कौन सी होगी वो मार्केट फॉर्म? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए नेम दैट मार्केट फॉर्म अंडर विच वन हैज टू सेलर हैज टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, देन मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक या एंड भी लिख सकते हो, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग बोथ एआर एमआर फॉल बट दे आर स्टिल पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस में यहाँ ओरिजिन से ऊपर रहने का मतलब कम तो हो रही है बट पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। फिर टीआर बिकम्स मैक्सिमम, एआर स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, फॉल कर रही है बट इट इज पॉजिटिव, बट एमआर बिकम्स इक्वल टू 0 एंड व्हेन टोटल रेवेन्यू फॉल्स, फॉल करने का मतलब माइनस नहीं, फॉल हो रही है बट इट इज एक्सिस के ऊपर है, ये पॉजिटिव ही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एआर फॉल्स, मतलब यहाँ पे बोथ टीआर एआर एमआर फॉल कर रही है बट उनके फॉल करने में भी डिफरेंस है, ये दोनों पॉजिटिव रहती है फॉल करते करते भी, और एमआर बिकम्स नेगेटिव, कम हो रही है बट नेगेटिव फॉर्म में कम हो रही है। तो यहाँ पर आपको ट्विस्ट करके लाइन को थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिलेशनशिप इज सेम, बस ओनली डिफरेंस क्या आएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज कंपटीशन अमंग सेलर्स, बहुत सारे होते हैं लोग बेचने वाले, तो उस केस में ये सारी जो कर्व्स है थोड़ी सी फ्लैटर हो जाती है, मतलब मोर इलास्टिसिटी आ जाती है उनके अंदर क्योंकि कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और मोनोपोली में स्टीप स्लोप रहती है बिकॉज एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन सिचुएशन का फायदा उठाता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उस केस में लेस इलास्टिसिटी होती है। और मोनोपोलिस्टिक में शेप बाकी सब कुछ सेम है, बस थोड़ी सी फ्लैटर हो जाती है, इलास्टिसिटी आती है, बाकी सारा कुछ सेम, ठीक। अच्छा, अब इसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा हार्ट एंड सोल मोनोपोलिस्टिक है। Are you finding any difference between the shapes? ये थोड़ी चपटी सी है, एक्सटेंडेड सी है, फैली हुई सी है, ये भी वही है, ये मोनोपोली है, ये मोनोपोलिस्टिक, ठीक। इसमें क्योंकि एक ही पर्सन है, इसमें बहुत सारे सेलर्स हैं। दूसरा अगर हम बनाए यहाँ पे दूसरी कर्व्स एआर और एमआर की, एआर एमआर है तो दोनों ही एआर एमआर है, बट इसमें स्टीप स्लोप है, प्राइस कम करते हैं बट थोड़ा थोड़ा ही कम करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जब हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं तो उसमें ये शेप ऐसे फैल जाती है, फ्लैट हो जाती है। अगर आपको याद हो चैप्टर ईडी वाला चैप्टर में, इसको क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड, और ये क्या होती है, मोर इलास्टिक डिमांड। जो एआर की कर्व है वो डिमांड कर्व होती है, तो लेस इलास्टिसिटी हियर मोर इलास्टिसिटी, बाकी सारा सेम है कि प्राइस कम करना पड़ता है। अब आ जाइए जरा इस लेसन के ऊपर बेस्ड ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। करेक्ट द स्टेटमेंट या एमसीक्यू, या आपको 1 मार्क में कोई न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होगी, ऑप्शंस दिए होंगे कि बताइए कौन सी वैल्यू बनती है, वो सारे करते हैं हम लोग। पहले अभी इसी के ऊपर बेस्ड ट्रू फॉल्स बता दीजिए। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। जहां भी लाइन आपको नहीं पता लगती ना, ड्रॉ डायग्राम क्विकली, फिर उसके हिसाब से आपने आंसर करना है, ठीक है। AR and MR curves slope downwards when more output can be sold by reducing the prices. AR and MR curves slope downward when more output can be sold by reducing the prices. Is it true or false? This is true. क्यों true है? जो अभी बनाया मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक के केस में more can be sold only by reducing the prices. So this line is true. Okay. AR and price are one and the same thing. True? Yes. इसके आगे फिर आप वो लिख सकते हो TRP into Q divided by Q करके वो फॉर्मूला. Okay. In case of constant prices, AR is more than MR. In case of constant prices, AR is more than MR. ये false है. Constant price का मतलब same price. तो सेम प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन, तो उसमें एमआर कम नहीं होती है, दोनों एआर एमआर इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस लाइन इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है एआर कैन बिकम नेगेटिव व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट।
AR can become negative when price falls with rise in output. इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ के ही पता चल जाता है AR can become negative. ये लाइन ही गलत है. AR कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि कोई चीज का प्राइस माइनस में नहीं हो सकता. कोई भी दुकानदार हमें ये नहीं कह सकता कि आओ महाराज आगे फ्री में उठा के चले जाओ, मैं नुकसान उठा लेता हूँ, आप खुश रहो. ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, है ना. इतना ही कुछ मतलब जरा सा कुछ पूछो अगला कहेगा बाहर से ही नमस्ते चलो जाओ आप. फ्री में कोई नहीं देता है. तो पहली बात ये अगले लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. AR कभी भी नेगेटिव कोई इवन जीरो भी नहीं हो सकता. ठीक. ओके नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ध्यान से जरा सोच के बताइए. टोटल रेवेन्यू कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. अब आप TR कर्व बना के देखो, चाहे आप ये वाली बना लो कर्व परफेक्ट कंपटीशन की ओरिजिन से स्टार्ट होती है, चाहे आप ये वाली बना लो तो भी ओरिजिन से स्टार्ट होती है. तो TR का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू Q. तो अगर कुछ सेल ही ना करे कोई तो फिर जीरो. पैसे तो मुझे तब मिलेंगे ना इफ आई सेल समथिंग. अगर मैं बेचूं ही ना तो कोई जीरो ही है, फिर तो मेरी रेवेन्यू कुछ है ही नहीं. ठीक. तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है कोई भी मार्केट फॉर्म. ओके नेक्स्ट है when MR falls to 0, AR becomes maximum. When MR falls to 0, AR becomes maximum. तमन्ना देवी क्या विचार है आपका? तमन्ना परमार, is it right or wrong? मैम wrong. Wrong है? क्यों wrong है? मैम TR मैक्सिमम नहीं होती. Yes. MR falls to 0 तो AR मैक्सिमम नहीं होती है, TR मैक्सिमम होती है. और AR keeps on falling. ठीक है. AR keeps on falling, rather TR becomes maximum. So this line is wrong line, wrong statement. Okay, next है when TR is maximum, MR is also maximum. When TR is maximum, MR is also maximum. This is totally false. तो फिर क्या होता है? at that time MR जीरो होती है, मैक्सिमम होती नहीं, जीरो होती है. Okay. TR starts declining when MR is less than 0. TR starts declining when MR is less than 0. True है ये. TR मैक्सिमम के बाद नीचे आए तो MR जीरो नेगेटिव हो जाती है. लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव हो जाती है और TR डिक्लाइन करती है. दिस इज राइट. ट्रू है ये. ओके नेक्स्ट है एक और. Marginal revenue can be neither zero nor negative. False. It can either be zero or it can also be negative. ठीक है जी. TR is at its maximum point when MR is zero. True है. I repeat. TR is at its maximum point when MR is zero. ये ठीक है, perfectly all right है, ये true है. अच्छा अब कर लेते हैं MCQ टाइप के क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट है वो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा. प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन बेटे. एक स्टेटमेंट दी होगा आपको, आगे 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन. तो आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव टू टिक मार्क द राइट ऑप्शन. प्लीज नोट डाउन. If a seller gets rupees 10,000 by selling 100 units. If a seller gets rupees 10,000 by selling 100 units and rupees 14,000 and rupees 14,000 by selling 120 units. By selling 120 units, then his marginal revenue will be. Next line में options have been given. Option A, rupees 4,000. First option 4,000 rupees. Second option rupees 450. First है 4,000. Second है 450. 450 450. Third है 200. Fourth है 100. Yes, 200 वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो कैसे पता चलेगा?
आपने पहले डिफरेंस निकाल लेना, 14,000 माइनस 10,000 4,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स का डिफरेंस है 20 का, 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। तो 2000 डिवाइड कर दें अपना, सॉरी 4000 डिवाइड कर दें 20 से, तो आंसर आ जाएगा 2000। ठीक, चलिए एक और लिखिए। If total revenue is rupees 1 lakh, if total revenue is rupees 1 lakh, when 20,000 units are sold, when 20,000 units are sold, comma, then AR is equal to, then average revenue is equal to, options are, first option 20,000, second option only rupees 5, second option is the correct option। ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज रेवेन्यू निकालनी है। तो 1 लाख को सीधा ही डिवाइड कर दे, 1 लाख है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू है, आउटपुट है 20,000, सीधा डिवाइड कर देंगे 5। ठीक, एक और एमसीक्यू है, व्हेन एमआर रिमेन्स सेम, टीआर इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। व्हेन एमआर रिमेन्स सेम, सेम का मतलब हो गया ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन का होगी बात ये, तो टीआर इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। वेरी राइट। अब ये सुनना है जरा ध्यान से, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, पहले नहीं बोलना, पहले ऑप्शन सुन लेने हैं। At any given level of a firm's output, at any given level of a firm's output, marginal revenue is the revenue earned by selling, ठीक है, MR is the revenue earned by selling, options है entire output, first option, second option है additional unit of output, and third है none of these। yes, second option है additional unit of output। very right, okay। चलिए अब लिखिए जरा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। बिकॉज इस लेक्चर में बस इतना ही है, आपको या तो रिलेशनशिप आ जाएगा या न्यूमेरिकल, दो चीजें ही आ सकती हैं। 3 या 4 मार्क्स का, इधर 3 या 4। हाँ जी, प्लीज नोट डाउन। द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, प्लीज नोट द क्वेश्चन, द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म increased by rupees 5,400, increased by rupees 5,400 when his sale increased from, when his मतलब कोई seller है, when his sale increased from 35 units to 50 units, when his sale increased from 35 units to 50 units, calculate marginal revenue। Let me see those who are doing at home. Let me check all the children. Yes, Pranjal Vate, keep your video on. Read the line carefully, please don't discuss। कर लिया? Increased by है, by वर्ड जहां भी आ जाता है, आपको पहले भी बताया, by आ जाए उसका मतलब वो चेंज दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज ऑलरेडी गिवन, डेल्टा टीआर इज 5,400, ठीक है, और डेल्टा क्यू निकाल लेना है, वो कितना है 50 माइनस 35, 15 आ जाएगा। तो 5,400 डिवाइडेड बाय 15 कितना है आंसर, कितना, 360 रुपीज, 360, ठीक है। चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट, और आउटपुट सोल्ड का चेंज आपने फाइंड कर लेना है, उसकी दोनों वैल्यूज हैव बीन गिवन, जस्ट फाइंड द डिफरेंस एंड देन डिवाइड चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। 5,400 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 35 दैट इज 15, तो यू विल गेट आंसर 360। चलो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन,
ध्यान से लिख के ध्यान से पढ़ के करना है। Suppose, write down the next one. Suppose a bookseller can sell. Suppose a bookseller can sell 10 books. A bookseller can sell 10 books at the price of rupees 200 per book. At the price of rupees 200 per book. Full stop. His marginal revenue from the 11th book is rupees 255. His marginal revenue from the 11th book is rupees 255. Full stop. At what price did he sell the 11th book? At what price did he sell the 11th book? ठीक है, अब जरा ध्यान से पढ़ के करना है, डोंट बी इन ए हरी. Should I repeat the statement? आप चेक कर लें जिसको नहीं पता चला. Suppose a bookseller can sell 10 books at a price of rupees 200 per book. His marginal revenue from the 11th book is rupees 255. At what price did he sell the 11th book? पहले आप निकालिए. If you are unable to do, then see the solution. Don't tell anybody. सभी अपना अपना करिए जरा. नहीं डिस्कस नहीं करना. नहीं फिर आप सोचो. 255. दोनों ही कॉन्सेप्ट आपने किए हुए हैं, मिक्सिंग कर दी है उन्होंने. सोचिए जरा ध्यान से. लेट मी सी. हाँ जी, चाहत, हिमानी, जैस्मिन, गॉट द आंसर 205. नहीं आया. जैस्मिन नहीं आया आंसर. आपकी आवाज नहीं आ रही. अनेबल टू हियर. यस नाउ स्पीक. आ गया. शेक योर हेड. आवाज अभी भी नहीं आ रही है. चलो कोई बात नहीं. लेट अस सी. जिनको नहीं पता चला वो सुन ले जरा. पहले बताया कि he can sell 10 books at a price of rupees 200 per book. ठीक है, तो टोटल उसकी रेवेन्यू कितनी होगी? 200 प्राइस के ऊपर 2000 हो गया. टोटल रेवेन्यू होगी 2000. अब उसने आगे दिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम 11th बुक इज 255. 11th बुक की जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज 255. ठीक, इसका मतलब ये 11th वाली जो किताब है उसने 255 रुपीस पे बेची. तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी? 10 बुक्स उसने 2000 की बेची, 11th बुक उसने 255 की बेची. तो टोटल कितनी होगी? 2000 प्लस 255 कितना हो गया टोटल? 2255 ऐड कर देंगे. टोटल 11 बुक्स. ठीक, अब वो अगली लाइन में उन्होंने पूछ लिया कि 11th बुक कितने रुपीस के ऊपर बेची. ठीक, अब 11th की मार्जिनल रेवेन्यू दी हुई थी, अब 11th की निकालनी है एवरेज रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? अब टोटल रेवेन्यू है पूरी 11 बुक्स की 2255 डिवाइडेड बाय बुक्स बेची है 11. तो अगर इसको डिवाइड करें तो 205. मतलब हमें क्वेश्चन में मिक्स करके लाइन दे दी. एक बता दिया पहले कितनी बेची, फिर 11 चीज की मार्जिनल रेवेन्यू बता दी, पूछ लिया एवरेज रेवेन्यू. तो आपने थोड़ा ध्यान से फिर इस केस में करना है. ठीक है, चलिए अब लिखिए क्वेश्चन टेबल फॉर्म का. टेबुलर फॉर्म में प्लीज राइट द क्वेश्चन. कैलकुलेट TR, AR and MR. Calculate TR, AR and MR. I hope all have written this question. Done बेटे करिए.
units sold 6, 7, 8 and price is given 5, 4, 3. Calculate TR, AR and MR. This information has been given. Okay. Calculate करने TR, AR and MR. डन बेटे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसी के ऊपर प्राइस मतलब दिस इज एआर और प्राइस वन एंड द सेम, तो दिस इज ऑलरेडी गिवन। इसको दोबारा से लिखना, फिर से लिख दो तो भी यही है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। उसके बाद टीआर निकाल सकते हैं। टीआर का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्यू। ये क्यू है, ये प्राइस पी हो गया, चाहे ब्रैकेट में लिखना लिख लो पी। 6 × 5 30, अगला बनेगा 7 × 2 28, नेक्स्ट 24। ठीक, उसके बाद निकालना है एमआर। ओके, कैन वी कैलकुलेट द एमआर ऑफ 6 यूनिट? इसको नहीं निकाल सकते, यहाँ पर ये लाइन, क्योंकि एमआर के लिए हमें पहले वाली वैल्यू का टीआर चाहिए। तो 6 के पहले 5 यूनिट्स बेचे थे, तो उसका कितना टीआर था हमें नहीं पता। अपनी ओर से जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि टीआर कभी भी जीरो नहीं होगा, इस करके इनडिटरमिनेट नील का साइन है। फिर आपको नेक्स्ट 28 में से कितना है चेक कर लो जरा आंसर। -2 -4 नहीं, यही आएगा ना, पहला नील, उसके बाद -2 -4 माइनस नहीं आएगा, ये देखो ना, ये 28 है, ये 24 है, तो 28 - 30 -2 आएगा, फिर 24 - 28 -4। चलिए नेक्स्ट लिखिए, माइनस साइन लगाना है ध्यान से। नेक्स्ट लिखिए बेटे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट टीआर, एआर एंड एमआर फ्रॉम द फॉलोइंग। कैलकुलेट टीआर, एमआर एंड एआर फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट कॉलम है यूनिट्स सोल्ड, फर्स्ट कॉलम का नाम है यूनिट्स सोल्ड, दैट इज क्यू। 3, 4, 5 units sold are 3, 4, 5 and second column is given price. Its values are 10, 9, 8. 10, 9, 8. Right? Find out TR, AR and MR. बिल्कुल सेम जैसे अभी ये किया था, बाकी भी कर लें जरा। Let us give 1 minute, half a minute. Very easy question. AR तो सेम ही रहेगा, प्राइस कॉलम उसी का नाम ब्रैकेट में P लिख लें, उसी को AR कह दें, उसी को प्राइस कह दें, सबका मतलब एक ही है, सेम कॉलम। उसके बाद AR या प्राइस इनटू Q कर दें। कितनी वैल्यूज आई हिमांशु बताइए? यस, प्लीज चेक विथ 30, 36, 40। ठीक है, अब आप MR निकालेंगे। थर्ड यूनिट की MR कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नील आएगा, डैश आएगा। उसके बाद 6 and 4, ठीक है, क्योंकि 36 - 36, उसके बाद 40 - 36 4 है। वेरी राइट। अगला है कंप्लीट द टेबल फॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी, वो आपने फिल करनी है। सो आई एम गोइंग टू राइट द टेबल ऑन द बोर्ड। Units of output they are given 1, 2, 3, 4. A are the following. First 2 dash, then 11 dash, 15 dash dash 3. फिर first blank, 26 blank and blank, ये dash dash. Formulas are same.
अगर आप डायरेक्टली इफ यू आर अनेबल टू डू इन द फेयर वर्क, बेटर टू डू इन रफ वर्क फर्स्ट. ठीक है, कोई कटिंग होती है तो दैट विल रिमेन इन योर रफ वर्क ओनली. Others are just writing the table. हाँ, उनको फोन पे देखने में टाइम लगता है, जरा आप वेट कर लीजिए. हाँ जी, एनीवन बेटे, मिताली, तान्या, जानवी, कोई भी बच्चा, any one of you can unmute yourself and please tell the values of these columns. Mitali, can you tell bete AR values? Please tell. बोलिए बेटे, मिताली जैन, unmute कर लो. 13, 11, 9. Please repeat. AR column. 15, 13. Yes. 15, 13, 11, 9. Very right. 15, 13, 11, 9. MR column. सभी बोल दो. MR column. हाँ जी बेटे, MR column की भी वैल्यूज बता दीजिए. 15, 11, 7, 3. Yes, 15, 11, 7, 3. ठीक है. TR की भी वैल्यूज बोल दो मिताली. TR column. 15, 26, 33, 36. Perfectly all right. Very good. 15, 26, 33, 36. मैं फिर से बोल देती हूँ, जिसका रह गया चेक कर लो. AR column 15, 13, 11, 9. MR column 15, 11, 7, 3. TR column 15, 26, 33, 36. ठीक है. एक और लिखिए इसी टाइप का क्वेश्चन. कंप्लीट द टेबल. Complete the table. Values are units of output 1, 2, 3, 4. Single and AR column. First 11, then 9. Then again. TR column. TR, sorry. TR column. ये MR column. MR में first 10, last 4. This is TR column, total revenue column. Last one is MR column. Done. हाँ जी, हिमांशु बताइए. फर्स्ट कॉलम AR कॉलम. वेरी राइट, वेरी गुड. बैठिए. केतन सेकंड TR कॉलम. वेरी राइट. तरण थर्ड MR कॉलम. वेरी राइट. 10, 8, 6, 4. वेरी गुड. I am going to tell you all can check. First price column 10, 9, 8, 7. ठीक है बेटे. ओके. 10, 9, 8, 7. सेकंड है TR का कॉलम. टोटल रेवेन्यू 10, 18, 24, 28. 10, 18, 24, 28. एंड लास्ट है MR कॉलम 10, 8, 6, 4. 10, 8, 6, 4. ठीक. तो इन दिस चैप्टर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे.